السلام علیکم۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دم کیا، تعویذ لٹکایا، اس نے شرک کیا۔ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ تو اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے؟ دم کرنا شرک ہے، تعویذ لٹکانا، باندھنا گلے میں، ہاتھ میں، شرک ہے۔ سمجھے؟ آیت پڑھ کے پھونکنا، تب پھونکنا پکڑ میں آ رہی بات تو دم کرنا بولے۔ دم کرنا پھونکنا ایک ہی بات ہے، انگلش میں بلو بولتے، بلو ہی، پھونکنا، بلو۔ سمجھا؟ پھونکنا دم کرنا کوئی الگ چیز تھوڑی، ایک ہی بات ہے۔ تو شرک ہے بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دم کرنا، تعویذ لٹکانا شرک ہے۔ بتائیے آپ، پھونکنا، آیت پڑھ پڑھ کے پھونک رہے ہیں، حالانکہ قرآن کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، تو اللہ نے حکم نازل کیا ہے نا۔ تو قرآن اللہ کا حکم ہے، آرڈر ہے، تو آرڈر پہ عمل کرنا ہے۔ جو قرآن میں باتیں ہیں، قرآن میں کیا اللہ کی باتیں ہیں، کلام اللہ، سمجھا؟ اللہ کا کلام یعنی اللہ کی بات ہے، سمجھا؟ تو بات کی جاتی ہے کہ بات پھونکی جاتی ہے؟ بات کی جاتی ہے یا بات کو اٹھا کے باندھا جاتا ہے گلے میں، ہاتھ میں؟ سوچیے آپ، اللہ کی بات پہ عمل کیا جاتا ہے۔ دنیا میں سارے لوگ بات ہی کرتے نا بھائی، مالک نوکر سے بات کرتا ہے نا، گھر میں بچہ ماں باپ سے بات کرتا ہے نا۔ تو نماز میں ہم اللہ سے بات کرتے ہیں، اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں نا، ان لوگوں کے راستے میں چلا۔ یہ کس کو بول رہے؟ نماز میں اللہ سے بات کر رہے، سمجھا؟ اللہ سے بات کر رہے، یہاں بھی بات کر رہے، اور اللہ جب قرآن پڑھتا ہے تو ہم سے بات کرتا ہے کہ یہ راستے پہ چلو، اسی پہ چلو۔ نماز پڑھتے تو ہم اللہ سے بات کرتے ہیں، ہم نماز پڑھتے تو اللہ سے بات کرتے ہیں، اور جب قرآن پڑھتے تو اللہ ہم سے بات کرتا ہے، یہ کرو، یہ مت کرو، ہم پڑھتے ہیں نا۔ تو اللہ کا باتیں اس کے اندر، تو باتوں کو عقل استعمال کریے، کیونکہ عقل استعمال نہیں کریں گے تو ترقی، کامیابی نہیں ہوگی، بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ دنیا کے کام میں تو ہر عقل استعمال کرتے ہیں، عقل ہے تو پھر امتحان ہے تمہارا، شریعت ہے۔ اگر عقل نہیں ہے، پاگل ہے، پاگل پہ شریعت نہیں ہے، صرف عقل کی بنا پہ ہے۔ عقل ہے تو شریعت ہے آپ پہ، سب فرض ہے، کام چلنا ہے۔ اگر آپ عقل نہیں ہے، پاگل ہے، پاگل اور عقل، جو آدمی پاگل نہیں ہے اور جو پاگل ہے، اس میں فرق صرف ایک ہی چیز کا ہے، عقل کا۔ اس کے پاس عقل نہیں، پاگل الٹ پلٹ کام کر رہا ہے، سمجھا؟ اور جس کے پاس عقل ہے وہ صحیح کام کرتا ہے، ہر چیز، کام پہ جانا، کھانا کھانا، کپڑا پہننا ہے نا، عقل ہے۔ اس طریقے سے عقل استعمال کرنا بہت ضروری ہے، کیا صحیح کیا غلط، یہ عقل میں بات بیٹھتی ہے کیا؟ یہ سب پھوکم پھاک کرنا، سمجھا؟ بہت گہری بات ہے، شرک ہے، ایسے نہیں بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ آسان سمجھ رہے بات کو، دم کر رہے پانی پہ، بچے پہ، مسجد کے باہر کھڑے پانی کی بوتل لے کے پھونک رہے، دم کر رہے، بچہ لے کے کھڑا ہے کوئی مسجد کے باہر، پھونک رہے، دم کر رہے، ارے بھائی شرک ہے بولے، سمجھا؟ پبلک کو گمراہ کر رہے سب، یہ جتنے ہیں نا فرقے والے، عالم مفتی گمراہ کرتے۔ فرقہ کون بناتا؟ عام آدمی نہیں بناتا، عالم مفتی۔ ایک عالم کروڑوں اس کے پیچھے چل رہے، ایک مفتی لاکھوں اس کے پیچھے چل رہے، تو کون بنا رہا ہے فرقے؟ پتہ چلا، عوام نہیں بنا رہی، عام پبلک، عوام، عالم مفتی بڑے بڑے یہ فرقے بنا رہے، یہ معمولی بات سمجھ رہے، بس پھونکتے جا رہے پانی پہ، بدن پہ، بچے پہ۔ ارے بھائی قرآن شفا کس چیز کے لیے شفا ہے بولا اللہ نے؟ یہ تو غور کرو، کہیں بتایا پورے قرآن میں 23 برس 300 پارے میں کہ بیمار تھے تو پھونک لیے پیغمبر نے، بیمار تھے تو پھوکم پھاک نبی بھی کر رہے، کہیں ہے پورے قرآن میں 25 پیغمبر ہے کوئی پھوکا؟ ان لوگوں کو نہیں معلوم تھی کیا اللہ کی باتیں؟ آسمانی کتاب میں ان کے پاس جو جو کتابیں آئی سب پیغمبر پہ نازل ہوئی کتابیں، ان لوگوں کو نہیں معلوم تھا پھونکنے کا؟ سوچیے آپ، 2500 پیغمبر، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، یوسف، ادریس، ایوب، زکریا، کسی کو پھونکنے کا نہیں معلوم ہے۔ اور یہاں نبی کو بھی 23 برس میں کوئی
आदमी नहीं आया थी मेरे भारत में कि अल्लाह बोला फूको। फूकने के लिए थोड़ी कुरान है। बीमारी कौन सी बीमारी? अल्लाह बोल रहे इनके दिलों में मर्ज है। कौन सा मर्ज है? कुफ्र का, शिर्क का, निफाक का, गुमराही का, गलत अकीदे का। ये है शिफाउल लिमा फिस सुदूर, सूरह यूनुस आयत नंबर 58। जो दिलों में बीमारी है ना, सीनों में जो रोग है, बीमारी, उसके लिए इलाज है। तो कौन सी बीमारी? आप सोचो। यही सब उल्टे सीधे बातें उसका पूरा कुरान में दिया ना। इनके ये लोग कहते हैं सिफारशी है, ये बीमारी। ये फूकना भी मना है। वमी शर्रिन नफ्फासाती फिल उक़द, अल्लाह की पनाह लो पढ़ पढ़ के फूकने वालियों की से। फूकने वालियों, वहां लेडीज है, नफ्फासाती फिल उक़द पढ़ते ना कुल तो रब्बिल फलक, उसमें है देखो, अल्लाह की पनाह में आओ पढ़ पढ़ के फूकने वाली। और यहाँ आलिम लोग घुमा देते आवाम, अरे वो तो जादू के लिए, जादूगर नहीं, जादू, अरे जादू की बात थोड़ी है। वहां शहर लफ्ज किधर है? वहां फलक नास में किधर है? वमिन शर्रि नफ्फासाती फिल उक़द, गंडे, तावीज, फूकना, दम करना, वो बात हो रही है वहां। जो लोग गिरोह में गांठ बांधते ना, फूटने की नहीं बात हो रही वहां। तो अल्लाह की पनाह में ले पढ़ पढ़ के फूकने। तो कुरान से भी साबित है, पढ़ पढ़ के मत फूको। आवाम को बोलते हैं अरे वो फूकना मतलब जादू। अरे जादू की बात थोड़ी हो रही वहां, फूकने फाकने की बात हो रही। फूकना मना है, समझे आप? इतनी गहरी बात है ये, समझे आप? और दूसरी बात, अहम बात, क्यों शिर्क बोले नबी? कभी ये कोई गौर नहीं किया, समझा? इसमें गौर करने की बात है, समझे? क्यों शिर्क बोले? बहुत बड़ी बात है ये। क्योंकि ये जो फूकना है, कुरान में दिया है क्या है मामला फूकने का। हमने जब आदम को मिट्टी का पुतला बनाया है तो फरिश्तों को हुक्म दिया, जब मैं इसके अंदर अपनी रूह फूक दूं, जब अपनी रूह फूकू तो तुम सजदे में गिरना। तो कौन फूक रहा है रूह? अल्लाह फूक रहा है, समझे आप? सूरह हिज्र देखिए आप खोल के, आयत नंबर 29 में, सूरह हिज्र, अल्लाह बोल रहे हैं हम आदम के अंदर रूह फूकी हमने, समझा? तो यहाँ रूह अंदर फूकी, रूह का मतलब ये नहीं अपनी रूह फूकी जो बोल रहा है। तो नौज़बिल्लाह, इसमें भी गुमराही फैली है कि अल्लाह के अंदर की नौज़बिल्लाह रूह अल्लाह ने फूकी है। ऐसा नहीं है, रूह अल्लाह की एसेट है, चीज है अल्लाह की, समझा आप? तो अल्लाह की चीज को अल्लाह बोलता है हमने अपनी, यानी अल्लाह की चीज है ना वो रूह जो आदम के अंदर फूकी, तो अल्लाह फूक रहा है, समझा? हमने मरियम के अंदर रूह फूकी, सूरह अंबिया आयत नंबर 91, 91, हमने फूकी, तो अल्लाह वहां रूह फूक रहा आदम में, मरियम। अब आप समझे बात? अल्लाह का कैरेक्टर ये कि बेजान चीज में जान डाल देना, बिना मर्द के मरियम को बच्चा पैदा कर देना, हमल ठहर जाना। तो रूह फूक रहा है अल्लाह। तो ये कॉपी कर रहे, बिगड़ी हुई चीज को बना रहे। कोई बीमार है फूक रहे, मर्द है, कोई बीमारी है फूक रहे, कॉपी कर रहे लोग, इसीलिए शिर्क बोला। आप सोचिए, कॉपी कर रहे अल्लाह की। अल्लाह भाई मिट्टी कहते फूके अल्लाह ने रूह उसमें, तो मिट्टी की चीज एक्टिव हो गई, जानदार होगी ना। मिट्टी, पुतला, बेजान, आदम, उसमें रूह फूकी, समझे आप? तो जान आ गई। गौर कर रहे कितनी भारी बात है, अल्लाह का कैरेक्टर है, उसकी कॉपी कर रहे। बुत जो आदम जो है स्टैच्यू थे, जब रूह नहीं डाले थे तो मट्टी के पुतला बनाए थे अल्लाह ने। अब हदीस है कि जो भी पुतला दुनिया में बना रहा है, कयामत के दिन अल्लाह फरमाएगा वो लोग को कि तू कॉपी कर रहा था, मेरी पुतला बना रहा था, तो अब रूह डाल। अल्लाह तो आदम को बनाया तो उसमें रूह डाला। कयामत में बोलेगा तुम लोग दुनिया में बनाते थे मूर्तियां, पुतले, स्टैचू, तो कयामत में बोलेगा अल्लाह, ये हदीस है कि रूह फूक, क्या इंसान फूक के जिंदा कर सकता है या जान डाल सकता है? नहीं। तो कॉपी करना मना है, अल्लाह की नकल करना मना है, समझ रहे आप? सोचिए कितनी भारी बात है। पुतला बनाना मना है, तो पुतला तो कम वैल्यू का, रूह उसके अंदर डाली ज्यादा वैल्यूएबल चीज है, रूह, जान आ गई,
आदम के अंदर, है ना भाई। तो पुतला बनाना मना है तो रूह फूकना, या फूक रहे तुम क्या फूक रहे, तुम्हारे अंदर क्या पावर कैरेक्टर है नौजुबिल्ला अल्लाह का कि बीमार को ठीक कर दो, पढ़ के फूक दो, कुरान की आयत उठा के फूक दो। अल्लाह तो नहीं बोला, पैगंबर 2500 और नबी कोई तो नहीं बोला, ये गड़ी हुई बात नबी के ऊपर। नबी ने बोला, बुखारी में हदीस है, नबी ने बोला फूको, दम करो। बुखारी में नबी बोल रहे फूको, अबू दाऊद में नबी बोल रहे शिर्क है फूकना, दम करना। समझ में आ रही हदीस को परखो आप। नबी दो बात बोल रहे, बुखारी में बोल रहे फूको और अबू दाऊद में बोल रहे मत फूको। अब ये दिखाएंगे ना, ये बातें आलिम को पूछेंगे, उनके पास जाना ही मत, अपनी अकल इस्तेमाल। उनके हाथ जाएगा तो बोलेंगे ये वो फूकना है, ये वो फूकना है, वो जायज नहीं, ये जायज है, ये उसमें शिरकिया कलमात है, इसमें क्या शिरकिया कलमात है, अवाम को गुमराह करते हैं। शिरकिया कलमात क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ के फूक दिए, शिरकिया कलमात है? नहीं है उसमें। कुल अल्लाहु अहद पढ़ के फूक दिए, शिरकिया कलमात है उसमें? नहीं है। तो क्यों अवाम को गुमराह कर रहे हैं कि शिरकिया कलमात नहीं है तो फूक सकते, कोई शिरकिया कलमात नहीं है तो दम कर सकते। अबे पब्लिक को गुमराह कर रहे तुम लोग, पब्लिक को अवाम को गुमराह कर रहे हैं। ये फूकना वो शिरकिया, अरे शिरकिया क्या है, तमाम आयत कुरान की मैं पढ़ के फूकू जिसमें शिरक की बात नहीं है तो क्या वो सब जायज हो गया? ऐसा अवाम को गुमराह कर रहे हैं। आप लोग सोचो ना, आप लोग की गलती है ना भाई, कुरान तो घर में है। अल्लाह तो फरमा रहे कुरान में कि मैं फूकता हूँ, मेरे अंदर पावर है, फूकूं तो वो काम हो जाता है। समझा? तुम उसकी कॉपी कर रहे, इसलिए नबी ने बोला शिर्क है। समझा? फूकना दम करना शिर्क है बोले। आप लोग सोचिए, मैं सवाल करता हूँ लोगों से जो हज उम्रे को जाते, हज में 30-35 लाख, उम्रे में 15-20 लाख हमेशा रहते उम्रे में, हज में। वहां पे बताओ ना दलील, वहां अली मुफ्ती कुरान के जानने वाले नहीं है? सोचिए आप, वहां फूकते क्या? कभी देखे होंगे हज उम्रा में 20 लाख 15 लाख 30 लाख फूक रहे वहां अली मुफ्ती, और पानी की बोतलों पे फूक रहे हो। अभी यहाँ जब मस्जिदों के बाहर फूक रहे रमजान में, इधर वहां तो लाखों लोग आते, तो जायज होता अगर दम करना फूकना, तो वहां बोतलें लेके सब फूकते, बड़ी बड़ी बोतल, वो भी जमजम की बोतल में फूकते सब। अगर जायज होता तो वहां फूकते ना लाखों लोग। इमाम साहब काबे के 10 इमाम 8 इमाम 15 इमाम सब काबे के तरावी पढ़ाने वाले, एक से को अरबी के माहिर, अरबी दां, उनकी जबान में कुरान है। उनको नहीं मालूम कुरान हदीस क्या? काबे वाले लोग को नहीं मालूम, खाली पूरे वर्ल्ड वाले को मालूम है, सिर्फ काबे वाले को नहीं मालूम। सोचो आप, चिटिंग, गुमराही, घपला, मिलावट, नमाज रोजा हज ज़कात सब कर रहे हैं, शिर्क साथ में, सारे अमाल बर्बाद। शिर्क की कई किस्में, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ शिर्क। शिर्क की कई किस्में आपको धीरे धीरे आपको बयान में मालूम पड़ते जाएगी। मैं बता रहा हूँ एक एक शिर्क की किस्में, बताया ना पिछले बयान में शिर्क क्या है। तो इसी तरीके से आने वाले और बयान में बताऊंगा। काबे में नहीं फूक रहे, दम कर रहे भाई, सोचो आप, जायज काम वहां नहीं हो रहा है। जायज है ना, अगर तुम लोग बोलते दम कर सकते हैं और शिरकिया कलमात नहीं है तो कर सकते। ये सब पब्लिक को धोखा दे रहे, धोखा, चीटिंग। इसीलिए तो मैं बार बार बोलता हूँ कि गुमराह कौन, आली मुफ्ती कर रहे बड़े बड़े, पब्लिक आवाम थोड़ी गुमराह कर रही। काबे में नहीं हो रहा है वो काम। सोचिए आप, सबसे पूछ लिया हूं मैं, जितने लोग हज उम्रा नौकरी करके आए काबे में, भाई फूकते क्या वहां, दम करते क्या? कभी भी बोतल पे, बच्चे पे, एक दूसरे पे, या किसी बीमार पे। काबे के अंदर की बात कर रहा हूं मैं, काबे के बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ। काबे के बाहर, काबा उसको बोलते हैं जहाँ तवाफ होता है, वो मस्जिद के अंदर, बाहर नहीं। बाहर तो बहुत सलफी लोग की मस्जिद है, अहले हदीस। सलफी का मतलब अहले हदीस गिरोह, वहां पे सल्फी बोलते हैं, यहाँ एशिया में अहले हदीस बोलते हैं। है दोनों एक ही ग्रुप, एक ही ख्याल। वो लोग के पास तो, वो लोग तो करते हैं सऊदी में, सब करते वो लोग, सल्फी लोग। जो अहले हदीस यहाँ करते वो सल्फी वहां वो करते, दोनों एक ही ग्रुप है, खाली नाम चेंज हुआ है। सोचिए आप, फूकना मना है, शिर्क है, दम करना, तावीज़ लटकाना, ये अल्लाह का कैरेक्टर है, तुम कॉपी कर रहे हो। फूको ना, तालाब लॉक करो और फूको, देखो खुलता है कि आयत पढ़ के। बोलते हैं ना शिरकिया कलमात नहीं है तो दम कर सकते, तो बिना शिरकिया कलमात लेके फूको और ताला खोलो। बेजान चीज है ताला, उसमें तो जान नहीं। ताला या मशीन बिगड़ गई, फ्रिज पंखा, आयत पढ़ के फूको,
जिसमें शिरकिया कलमात नहीं वो जायज है, तो वही पढ़ के फूको ना। पंखा, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, कार, टैक्सी, स्कूटर बिगड़ती क्या नहीं, फूको ना। फिर वहां इस्तेमाल, अरे जायज होता तो पूरे वर्ल्ड के मुसलमान डॉक्टर, दीनदार मुसलमान डॉक्टर है ना, दीनदार, वो दवा भी देते, फूकते भी, अगर जायज होता। वो लोग मालूम होता, उन लोग पता है कि फूकने से नहीं होता है, इसीलिए दवा देते, इंजेक्शन, फाड़ना, चीरना, फूकने से नहीं होता। अब क्या है, हाँ अल्लाह फूके जिस चीज में तो वो होती, क्योंकि अल्लाह के पास वो पावर है, कैरेक्टर है, इसीलिए शिर्क है फूकना। आप लोग सोचिए, मामूली बात नहीं है, समझे आप। पैगंबर लोग तो पुकार रहे, सब पैगंबर, जो चाहिए, बीमार है, बच्चा चाहिए, हर पैगंबर देखो कुरान में क्या क्या बोल रहे हैं, अल्लाह को पुकार रहे, कोई पैगंबर नहीं फूक रहा है। पैगंबर लोग को नहीं मालूम शरीयत, दीन, इस्लाम नहीं मालूम फूकना जायज है कि नहीं जायज। जायज होता तो अल्लाह ही बोलता, सब पैगंबर लोग फूकते, वो लोग तो पुकार रहे, मांग रहे अल्लाह से, ये प्रॉब्लम है दूर कर दो, ये प्रॉब्लम है, तू ही ठीक करने वाला है, बीमार हो तू ही शिफा देने वाला, औलाद नहीं तू ही औलाद देने वाला है ना भाई। किधर फूक रहे हैं, किधर सिफारिश, कुछ भी नहीं भाई, समझो आप किधर हो, कहाँ भटक रहे हो अंधेरे में। कुरान खोलो, रोशनी है, हिदायत है, इल्म है, नूर। कुरान को हिदायत बोला अल्लाह ने, नूर बोला, रोशनी बोला कुरान को, इल्म की किताब, हिदायत की किताब घर में, तर्जुमा पढ़ो ना मायने से, तब मैं जो बोल रहा सब मिल जाएगा कुरान, समझा। आसान है कुरान, पढ़िए अपनी जबान में, जो जबान आती है उस जबान में महीने वाला कुरान मिलता है, लाइए और पढ़िए, हिदायत मिल जाएगी आपको इंशाअल्लाह। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।